Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 3, The Night I Met Einstein. So, students, it is a very interesting topic, and I hope definitely you will enjoy it. Albert Einstein. We will read about Albert Einstein. Albert Einstein was born in 1879 and died in 1955. Here, he was a German-born physicist. He belonged to German. He belonged to German. And what was his profession? His profession was his profession was he was a physicist. Physicist. What is physicist? Physicist means a scientist trained in physics. A scientist trained in फिजिक्स भौतिक शास्त्री या भौतिक विज्ञानी. So he received Nobel Prize. He received Nobel Prize in 1921 in physics. In physics. Clear? He is known for his great intellectual achievement. So what was he famous for? He was famous for his intellectual achievement. Then question may arise. What was his intellectual achievement? What was his intellectual achievement? His intellectual achievement, as you read in science, theory of relativity. Its answer is theory of relativity. You know that he invented a formula E equal to mc square. Okay. So he was famous for his intellectual achievement, and his intellectual achievement was theory of relativity and originality. He was famous for both things. One was for intellectual achievement, that is theory of relativity, and another was originality. What is originality? The quality of being new and original. असलियत या नवीनता. So he was famous for two things. One was for his intellectual achievement, that is a theory of relativity, and another was originality. Originality means the quality of being new and original. He didn't copy from others. He didn't cheat from others. Okay. So let us read about the day the narrator met Einstein. So उस दिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब एक दिन क्या हुआ, नैरेटर ने आइंस्टाइन से मिले थे. How he met Einstein and what happened. And that day became a memorable day for the narrator. Why? We will read in details. When I was a very young man. So here it is the narrator who narrates this story. So main character is the narrator. So narrator says that when he was a young man, I was invited to dine at the house of a very rich and powerful businessman.
one day what happened? A very rich businessman invited so many people, and one of them was the narrator. So the narrator was invited along with so many people to attend a party given by a rich businessman. Okay, so it was a dinner party. After a wonderful dinner, so when the dinner was completed, our host masculine gender and hostess feminine gender. What is host? One is guest, अतिथि, और जो अतिथि के सत्कार करते हैं, अगर आपको कोई बुलाते हैं तो जिनके यहाँ आप जाते हैं उनको बोला जाता है होस्ट, मेजबान। जो मेजबानी करते हैं, जो इनवाइट करते हैं वो होते हैं होस्ट, और जिनको इनवाइट किया जाता है उनको बोलते हैं गेस्ट। मान लो आपका बर्थडे पार्टी है, आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, तो आपके बर्थडे पार्टी में यू विल बी द होस्ट and your friends will be the guests. Is it clear? So suppose that आपके पापा जी ने इनवाइट किए हैं, तो पापा जी आपके हो जाएंगे होस्ट, तो आपकी मम्मी बन जाएगी होस्टेस, अतिथि सत्कारिणी। ओके, सो व्हाट हैपेंड देन? आफ्टर डिनर आवर होस्टेस took us to a large drawing room. तो हम सभी को, ऑल द प्रेजेंटेड गेस्ट्स को, तो कहाँ ले गए? ड्राइंग रूम में। ओके, चेयर्स वे आर बीइंग अरेंज्ड, ऑलरेडी chairs had been arranged for our sitting. I am arranging the chairs for a concert, our hostess said. hostess ने कही कि मैंने अरेंज कर रही हूँ चेयर को फॉर कंसर्ट। व्हाट इज कंसर्ट? कंसर्ट मीन्स अ म्यूजिक प्रोग्राम। कंसर्ट, CONCERT, कंसर्ट, म्यूजिक program. Okay, so we are going to listen to a very good pianist. Pianist means one who plays the piano. जो पियानो बजाते हैं उनको पियानिस्ट कहते हैं। So it was the suggestion, it was the remark of the hostess. Clear? Though everyone else was very happy, everybody presented in that party was very happy, but I was not happy. What was the reason? We will know. Why the narrator was not happy? What was the reason? Because very soon the concert was going to be started. Though everyone else was very happy, I was not. I didn't understand classical music. So what was the reason behind it? Because I was unable to understand the classical music. Question may come, why was the narrator not happy in the concert though everybody presented there was happy? So what was the reason? Because the narrator was unable to understand the classical music. Did you understand? Clear? I thought I was tone deaf. Students, tone deaf. Tone deaf मतलब क्या होता है? Unable to hear the difference between high and low notes of music. कभी कभी जब संगीत चलता है, कभी हाई नोट्स में गाना गाया जाता है, कभी लो नोट्स में होता है। जब आवाज़ ऊंचा करके बोला जाता है, कभी गाना हाई नोट पर, हाई पिच पर उठता है, और कभी डाउन हो जाता है। ये जो डिफरेंस को समझना, अनेबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हाई नोट एंड लो नोट्स। अगर कोई व्यक्ति ये समझ नहीं पाएगा व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है हाई नोट्स और लो नोट्स में, तो उसको क्या कहा जाएगा? टोन डिफ। सो द नैरेटर थॉट दैट he was a tone deaf because he was unable to understand
the difference between the high notes and the low notes. So I sat down and I would not be impolite. क्योंकि everybody was present there, they were interested and they were listening to the concert. तो मैंने एक पोलाइट बनने के लिए, इम्पोलाइट ना दिखाने के लिए, इम्पोलाइट मीन्स इनडिसेंट, इम्पोलाइट, इनपोलाइट, इनडिसेंट, अभद्र, अशिष्ट, मैं अपने को अशिष्ट नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने भी वहां पर बैठ गया एंड वेटेड फॉर द कंसर्ट टू बिगिन, और कंसर्ट शुरू होने का इंतजार किया. I did not pay attention to the music after it began, and when the music started, when the concert started, I didn't care, because I knew that I was unable to understand, I was unable to differentiate, make difference between the high notes and the low notes. After a while, I heard everyone clapping. कुछ समय के बाद में मैंने देखा कि भाई सब कोई ताली बजा रहे हैं. So I realized that the piece was over. मैंने सोचा कि लगता है कंसर्ट का ये गाना खत्म हो चुका है. Just then I heard a gentle but firm voice. ठीक उसके बाद में मैंने सुना एक संत, जेंटल, भद्र, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रांग, फिर मतलब स्ट्रांग वॉइस. क्या कहता हुआ? You are fond of batch. You are fond of batch. What is batch? It has been given in your book. Batch क्या है? जॉन सेबेस्टियन बैच, उसे खाली बैच नाम दिया गया है. बैच मीन्स जॉन सेबेस्टियन बैच. तो ये जॉन सेबेस्टियन बैच ने एक जर्मन ऑर्गेनिस्ट थे. ऑर्गन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक द पियानो. पियानो जिस प्रकार का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसी प्रकार की ऑर्गन भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. तो ये जो जॉन सेबेस्टियन बैच है, वो जर्मन के रहने वाले थे और एक बहुत बड़े ऑर्गेनिस्ट थे एंड ए ग्रेट कंपोजर ऑफ ऑल टाइम, और वो एक म्यूजिक कंपोजर भी थे. सो इसीलिए वो व्यक्ति ने पूछा कि आपको जानते होंगे बैच के बारे में, और आप लोग पसंद करते हैं बैच को. आई न्यू एज मच अबाउट बैच आज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स. मैंने क्या बताया कि जितना मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानता था, उतना ही मैंने बैच के बारे में जानता था. इसका मतलब मोस्टली पीपुल डिडंट नो अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स. अगर लगभग 90% लोगों को या बच्चों को पूछ दिया जाए तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पता नहीं चलेगा. तो उसी प्रकार का, यानी उनके कहना, ये एक आयरोनी था, ये एक विरोधाभास था. तो उनके कहने का मतलब है कि मैं भी बैच को नहीं जानता हूँ. कौन है बैच? आई डोंट नो. जितना मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानता हूँ, उतना ही मैंने बैच के बारे में जानता हूँ. इसका मतलब आई डोंट नो अबाउट बैच. ओके, आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, ताकि मैं अपने को बचा सकूँ और मैं जा सकूँ. आई टर्न्ड इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर बिकॉज देयर वेर सो मेनी पीपल सीटेड देयर. मैंने थोड़ा सा बगल में देखा, मेरे जो पड़ोसी में बैठे थे बगल में, एंड आई सॉ अ वेरी फेमस फेस. और मैंने क्या देखा? एक बहुत परिचित व्यक्ति को देखा, परिचित चेहरा, फेमस चेहरा को देखा. इट वॉज समवन विथ ए शॉक ऑफ वाइट हेयर. शॉक ऑफ वाइट हेयर मीन्स वाइट बालों का, उजले बालों का उलझा हुआ गुच्छा. उलझा हुआ क्या है? यानी प्रॉपर तरीका से उसको कंघी न किया हुआ, प्रॉपरली नॉट ड्रेस्ड, उसको बोलते हैं उलझा हुआ. एंड ए पाइप, और एक सिगार या जिसको चिलम बोलते हो, मुंह में लिए हुए थे, और वाइट कलर का बाल का गुच्छा था. तो एक व्यक्ति को मैंने देखा. आई न्यू दैट आई मस्ट टेल द मैन द ट्रूथ. मैंने सोचा कि चलो मैं सच्चाई बता देता हूँ. He looked at me as if my answer was very important. वो व्यक्ति मेरे तरफ ऐसा देख रहा था जैसा कि मानो कि he wanted to know my answer. He wanted to give importance to my answer. वो मेरे आंसर को ज़्यादा महत्व देना चाह रहा था. तो इसीलिए मैंने सोचा, so I thought I would expose the truth.
I would not tell lies to that person, to that man. I do not know anything about batch, I said. And I spoke the truth. मैंने सच्चाई बता दिया कि मैंने कुछ भी नहीं बैच के बारे में जानता हूँ. I said, I have never heard any of his music. मैंने कभी नहीं सुना है बैच का कोई भी म्यूजिक. He looked surprised. वो आश्चर्य होकर के मुझे देखता रह गया. You have never heard batch? He asked. Again he questioned. आपने कभी नहीं सुना है बैच को? मतलब बैच को मतलब उसके गाना को कभी नहीं सुना है. He made it sound as if I had said that I had never taken a bath. और ऐसा मुझे लगा, वो इतना आश्चर्य हुआ जैसे कि मुझे लगा कि मैं बोल रहा हूं कि मैंने कभी बाथिंग नहीं किया हूं, स्नान नहीं किया हूं. जैसे कि बाथिंग ना करना जीवन में कभी, इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग. एक दिन नहीं तो 2 दिन में निश्चित कभी ना कभी हम लोग को बाथिंग करना जरूरी है. इट इज अन इंडिस्पेंसिबल पार्ट. ऐसा उनको लगा कि जैसे कि मैंने कभी बात ही नहीं किया हूं, बट मैंने ये बोला कि मैंने कभी बैच को सुना ही नहीं. I would like to understand music so that I could understand bands. I said, but I am not able to. I am tone deaf. तो मैंने क्लियर बता दिया कि I am a tone deaf means I am not able to understand the difference between the low pitch and high pitch sound. So I am not taking interest in this classical music. So I don't know about batch. So it was my clear-cut answer. It was my clear-cut answer. The old man got up. खड़ा हो गया. You will come up with me? As he asked. उसने कहा मेरे साथ आइए. I just remained seated. मैंने नहीं उठा, मैंने चुपचाप बैठा रहा. I am requesting you to come with me, he said again. उन्होंने फिर बोला कि भाई मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आ जाइए मेरे पास. So I went up with him. मैंने उनके पास गया. He took me to a room. उन्होंने मुझे एक रूम में ले चले. Which had a gramophone. जिस रूम में एक ग्रामफोन था. In it and asked what kind of music do you like. और उन्होंने मुझे पूछे आपको किस प्रकार की म्यूजिक पसंद है. Well, I answered, I like songs which have words and all kinds of music where I can follow the tone. मैंने बताया कि मुझे ऐसा कि संगीत चाहिए जहाँ जिसको मैं जान सकूँ, जिसको मुझे अच्छा लगे और उसमें शब्द हो, उसमें कुछ संगीत हो. He smiled. That man smiled and nodded. Okay? Obviously, please. You can give me an example, perhaps. अरे भाई बताइए कि एग्जाम्पल दीजिए किस प्रकार का म्यूजिक आपको पसंद है. I told him I liked anything by Bing Crosby. So फिर एक नाम आ गया, Bing Crosby. तो who was Bing Crosby? Bing Crosby, जिस तरह बैच के बारे में, तो Bing Crosby was a famous American actor. एक मशहूर अमेरिकन एक्टर थे, एक जैज म्यूजिशियंस भी थे और एक पॉप सिंगर भी थे. तो उन्होंने इसका मतलब उनका कहने का यह तात्पर्य था कि आई लाइक्ड पॉप सॉन्ग्स, सम जिग-जैग सॉन्ग्स, अ वेरी नॉट क्लासिकल सॉन्ग, पॉप सॉन्ग. उनका कहने का ये इच्छा था. नाउ at once I could hear Bing Crosby's voice filling the room. अचानक उन्होंने म्यूजिक चलाए और किसका? न क्रशबाई का. Now can you please tell me what you just heard? He said. उन्होंने फिर पूछा मुझे व्यक्ति ने, अब बताओ आपने क्या सुना? The simplest answer seemed to be sing the lines. मैंने क्या किया? जो सुना था संग को उसको गा लिया. I sang it back to him. मैंने गाकर सुना लिया. He smiled. You are not tone deaf, he said. और उन्होंने बोला कि you are telling lies. You are not a tone deaf. Because earlier he had said that he was a tone deaf because he was unable to differentiate between the high pitch and low pitch of the sound. तो बोले कि no, you are wrong. You are not a tone deaf. I told him, मैंने उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया, बताने के लिए कोशिश किया, समझाने के लिए. I wanted to make him understand that I was a tone deaf. और मैंने ये गाना को गा पाया because it is my favorite song and something I had heard hundreds of times. मैंने उसका रेस्पॉन्स बताया, रीजन बताया
कि मैंने इस गाना को बहुत बार 100 से अधिक बार मैं सुन चुका हूँ, सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग, इसीलिए मैंने आसानी से इसको गा लिया। सो इजीली आई फॉलोड, इजीली आई sang दिस सॉन्ग। नॉनसेंस सेड आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने बोला उनको कि नॉनसेंस, इट प्रूव्स एवरीथिंग। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट एरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? क्या आपको याद है जब पहले आपने शुरू किया पढ़ाई, आपको कौन सा एरिथमेटिक लेसन बताया गया था? एरिथमेटिक में कौन सा पार्ट था जो आपको बताया गया था? डू यू रिमेंबर? आपको याद है? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कंटेक्ट विथ नंबर्स, जब पहले नंबर के बारे में पढ़े, 1 2 3 4 के बारे में जाने, योर टीचर हैड ऑर्डर यू टू वर्क आउट ए प्रॉब्लम। क्या आपके टीचर ने आपको पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे दिया? लॉन्ग डिवीजन और फ्रैक्शन, जैसे कि डिवीजन, फ्रैक्शन, क्या आपके टीचर ने आपको बताया? कुड यू हैव डन इट? क्या आप इसको कर सकते थे? नरेटर ने रिप्लाई किया, नो ऑफ कोर्स नॉट, नो नो नो। हाउ इट इज पॉसिबल? इट वाज माय फर्स्ट क्लास, आई वाज लर्निंग नंबर्स, and how my teacher would give me the fraction and division? Exactly, it is like learning maths. जिस प्रकार आप मैथ सीख रहे हो, ठीक उसी प्रकार म्यूजिक। You have to learn addition and subtraction in order to do multiplication and division. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको एडिशन सीखना होगा, आपको सब्ट्रैक्शन सीखना होगा। दिस इज द प्रोसेस, इट इज अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, बाय एंड बाय, स्टेप बाय स्टेप यू विल हैव टू लर्न, आपको सीखना होगा। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग ए लिटिल मोर एडवांस्ड। अब आगे मैं थोड़ा सा और एडवांस्ड चीज बता रहा हूं। इट वॉज द ट्रम्पेटर बाय जॉन मैककॉर्मैक। पहले कौन सा गाना सुनाया था? बिंग क्रॉस्बी, उन्होंने समझ गया। फिर और एक, इस बार क्या है ना, जॉन मैककॉर्मैक। ये कौन थे? वाज एन ईरिश। ईरिश मीन्स द पीपल ऑफ आयरलैंड आर कॉल्ड ईरिश। आयरलैंड के लोगों को ईरिश कहा जाता है, जिस तरह पोलैंड के लोगों को पोलिश, इंडिया के लोगों को इंडियंस, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन्स, इन द सेम वे ये जॉन कोमैक was an Irish tenor who was famous for operatic performance and popular song repertoires. तो इस बार क्या हुआ ना, जॉन मैककॉर्मैक का एक सॉन्ग उनको सुनाया गया। सिंग दैट बैक, उसको गा करके मुझे बताइए। ही ऑर्डर and we went on from one level to a higher level until he was playing just music without words. और इस बार वर्ड्स को बंद कर दिए और आप बोले कि आप गाना गाओ म्यूजिक के साथ में। आई वॉज अमेज्ड दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी। मुझे आश्चर्य लगा, भाई क्या बात है, ये मेरे पर क्यों फोकस कर रहे हैं? वाई ही इज फोकसिंग ऑन मी? वाई ही इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू मी? व्हाट इज द रीजन? I was unable to understand what was the reason behind it, why he was focusing on me, why he was giving importance to me. वो मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। So that I could learn something new. Because his intention, उस व्यक्ति का इरादा था कि I could learn something new, मैं कुछ नया सीख सकूं। It was his intention, that's why he was after me, that's why he was focusing on me, that's why he was giving importance to me. Is it clear? It was as if I was the most important person in his world. ऐसा लग रहा था, it seemed, ऐसा लग रहा था कि I was the most important person in the world. विश्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं ही था, ऐसा लग रहा था। इसीलिए तो वो मेरे पर फोकस कर रहा था, सारा कंसंट्रेट किया था। सडनली ही गट अप एंड टर्न्ड ऑफ द ग्रामोफोन। अचानक वो खड़े हो गए और ग्रामोफोन को बंद कर दिया। नाउ यंग मैन, ही सेड, वी आर रेडी टू लिसन टू बैस। क्योंकि पहले बिंग क्रॉस्बी को सुना दिया, फिर जॉन मैककॉर्मैक को सुना दिया, फिर बोला कि अब बारी है, अब हम लोग बैस के संग सुनेंगे। वी वेंट डाउन
अब हम लोग ड्राइंग रूम में गए, where all the audiences, all the invitees, all the guests were sitting. हम लोग अब गए, we went down and sat in the hall. अब हॉल में बैठ गए. Just allow yourself to listen. सिर्फ सुनो, he said. That is all there is to it. अब सिर्फ कोशिश करो सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए से. I have heard that piece many times since that day. उस दिन से मैंने उस गाना को बहुत बार सुना. But I am never alone. मैंने कभी अकेला नहीं. I am sitting beside a small man with a shock of untied hair. उलझा हुआ बाल का एक छोटा सा व्यक्ति मेरे बगल में था. And a pipe in his mouth. मेरे आंखों के सामने हमेशा उस व्यक्ति का चेहरा आ रहा था. Whenever I listen to this music of Bach, always the man's face was floating before my eyes. What kind of man he was? He was a small man with a shock of untied hair, उलझा हुआ बालों की गुच्छा, and a pipe in his mouth, और उनके मुंह पर एक चिलम या सीगर. He has eyes that are unusually warm. उनकी आंखें जो था unusually, not usual, not common, uncommon, warm. इतने उसमें गर्म जोशी था. His eyes were completely different from others. When the concert ended, जब concert, musical concert खत्म हुआ, I too was able to clap. मैंने भी ताली बजाया. Sincerely, ईमानदारी से. इस बार नहीं, ये प्रिटेंशन नहीं था. कुछ लोगों ने जब समझ नहीं पाते तो क्या करते हैं, भाई सबको ही बजा रहे हैं ताली, चलो हम भी बजा दें. बट दिस टाइम ही क्लैप्ड सिंसियरली. ईमानदारी से उन्होंने ताली बजाया. आवर होस्टेस केम टुवर्ड्स अस. जो होस्टेस हमारे पास आए, वी बोथ स्टूड अप. हम दोनों खड़े हो गए. आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड गिविंग मी ए कोल्ड लुक. उन्होंने मेरे पर ध्यान नहीं दी. आइंस्टाइन को आकर के बोली होस्टेस ने, आई एम सो सॉरी दैट यू मिस्ड सो मच. मैंने आप पर फोकस नहीं कर पाई, इसलिए आई एम सॉरी. आई एम सॉरी टू, ही सेड. आइंस्टाइन ने बोले, मैं भी दुखित हूँ. माई यंग फ्रेंड हियर एंड आई हाउ एवर वी आर एंगेज्ड इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल. क्योंकि आई वॉज बिजी, आई डिडंट फोकस ऑन यू, आई ओनली फोकस्ड ऑन दिस मैन. वो मेरे फ्रेंड है, यंग फ्रेंड है, और मैं चाहता था उनको कुछ एक ह्यूमन का क्वालिटी बताऊं, उनको एक कैपेबल में कर सकूं, उनको मैं एबल कर सकूं, उनको एक समर्थवान बना सकूं. शी लुक्ड पजल्ड. वो आश्चर्य होकर के देखते रही. रियली, शी सेड, एंड व्हाट इज दैट? अरे क्या है? आइंस्टाइन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माय शोल्डर्स. मेरे कंधे पर हाथ को रख दिए. ओपनिंग ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी. So what is opening of the frontiers? Exploring for the first time of beauty. Students, music is a heavenly gift. It is a heavenly gift. It gives us peace. It is beauty. और ये ब्यूटी को एक्सप्लोर करना, it is not easy. So ये मैं आइंस्टाइन कहने का मतलब कि मैंने अपने यंग फ्रेंड को ये बताने के लिए कोशिश कर रहा था, ये एक्सप्लोर उनको कराया कि व्हाट इज द ब्यूटी इन म्यूजिक. म्यूजिक में क्या सुंदरता था, उनके बारे में मैंने उनको एक्सप्लोर किया, बताया. इट वॉज ऑल अबाउट द नाइट आई मेट आइंस्टाइन. सो he can never forget that night when he met Einstein. So students, it is all about it, and I hope you would enjoy it. Thank you.